Assalamu alaikum everyone. How are you today? We are going to do chapter number 1, Introduction to Emerging Technologies, question answers. So our first part is what is robotics? Describe its various types. तो इसमें हम लोगों को robotics और इसकी various types को describe करना है. So our answer is robotics is a branch of technology that deals with the robots. Robotics technology की एक branch है जो robot से deal करती है. Robotics is a merger of engineering technology and computer science. Robotics engineering technology और computer science के merger हैं. इट इन्वॉल्व डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड यूज़ ऑफ रोबोट्स. ये रोबोट्स के डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन और यूज़ को इन्वॉल्व करते हैं. द गोल ऑफ रोबोटिक्स इज़ टू डिज़ाइन मशीन्स दैट कैन हेल्प एंड असिस्ट ह्यूमंस. इनका गोल है कि ये ऐसी मशीन्स बनाए जो ह्यूमंस को हेल्प और असिस्ट कर सकती हैं. इस क्वेश्चन में हमसे ये भी कहा गया है कि हम रोबोट्स की टाइप्स लिखें और उनको डिफ़ाइन करें. सो there are 5 types of robots: pre-programmed robots, humanoid robots, autonomous robots, teleoperated robots, augmenting robots. So pre-programmed robots operate in a controlled environment where they do simple and monotonous tasks. Pre-programmed robots control environment में operate करते हैं जहाँ वो simple और monotonous task करते हैं. For example, a mechanical arm in an automotive assembly line. Then we have humanoid robots. Humanoid robots look like and or mimic human behavior. These robots usually perform human-like activities, for example, running, jumping, and carrying objects. They are sometimes designed to look like real people with expression. An example of humanoid robot is Sophia. ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो होते हैं वो ह्यूमंस की तरह दिखते हैं और वो ह्यूमन जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और वो ह्यूमंस की तरह दिखते हैं और उनके एक्सप्रेशंस भी होते हैं और उसकी एक एग्जांपल है सोफिया. देन वी हैव ऑटोनोमस रोबोट्स. ऑटोनोमस रोबोट्स ऑपरेट इंडिपेंडेंटली of human operators. These robots are usually designed to carry out tasks in open environments that do not require human supervision. ऑटोनोमस रोबोट्स जो होते हैं वो ह्यूमन ऑपरेटर्स के बिना ही ऑपरेट कर लेते हैं. वो इस तरह डिज़ाइन होते हैं कि वो खुद ही अपना टास्क करते हैं विदाउट ह्यूमन सुपरविजन. इसकी एक एग्जांपल है नासाज मार्स क्यूरोसिटी रोवर. Then we have teleoperated robots. Teleoperated robots are semi-autonomous robots that use a wireless network to enable human control from a safe distance. For example, a drone carrying a package for home delivery. Teleoperated robots जो होते हैं वो semi-autonomous robots होते हैं जो wireless network होते हैं उनके अंदर जो human control को enable करता है safe distance से. Then we have augmenting robots. Augmenting robots either enhance current human capabilities or replace the capabilities a human may have lost. For example, a prosthetic arm. जो augmenting robots होते हैं वो human की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस भी करते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अ प्रोस्थेटिक आर्म. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर बी, डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिटेल. हाँ, इसमें हम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करना है. Our answer is artificial intelligence. AI is a branch of computer science that aims to create an intelligent system. The ability of a machine to think and learn without any strict programming is known as artificial intelligence. Machines learn with experience and can perform human-like tasks. It is an intelligent entity created by humans. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो एम करती है कि वो एक इंटेलिजेंट सिस्टम क्रिएट करेंगे. मशीन्स की एबिलिटी कि वो बगैर प्रोग्रामिंग के थिंक और लर्न कर सकें उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. मशीन्स ह्यूमंस के एक्सपीरियंस से और उनके जैसे टास्क कर सकते हैं. ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो ह्यूमंस ने क्रिएट किया है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी. इसमें हम लोगों को ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी से डिफ़ाइन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस सिस्टम ऑगमेंट्स द रियल वर्ल्ड सीन. ऑगमेंटेड रियलिटी जो होती है वो रियल वर्ल्ड सीन को ऑगमेंट करती है, जबकि वर्चुअल रियलिटी इज़ कम्प्लीटली इमर्सिव एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट. And then second point is augmented reality. In AR, user always has a sense of presence in real world.
ऑगमेंटेड रियलिटी में यूज़र को हमेशा ये सेंस होता है कि वो रियल वर्ल्ड में है, जबकि वर्चुअल रियलिटी इन वी आर विजुअल सेंसेस आर अंडर कंट्रोल ऑफ द सिस्टम, जबकि वर्चुअल रियलिटी में विजुअल सेंसेस जो होते हैं सिस्टम के अंडर कंट्रोल होते हैं। देन वी हैव थर्ड पॉइंट ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, इट इज़ यूज टू इन्हेंस बोथ रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड। ये रियल और वर्चुअल वर्ल्ड दोनों को इन्हेंस करता है। मीनवाइल वर्चुअल रियलिटी इट इज़ यूज टू इन्हेंस फिक्शनल रियलिटी फॉर द गेमिंग वर्ल्ड। ये फिक्शनल रियलिटी को इन्हेंस करता है गेमिंग वर्ल्ड के लिए। Then we have our D question, explain how a 3D hologram displays a 3D image। किस तरह एक 3D hologram 3D image को डिस्प्ले करता है। So our answer is a 3D hologram is a 3-dimensional image generated using photographic projection। एक 3D hologram 3-dimensional image है जो photographic projection के ज़रिए से जनरेट होती है। It is a truly 3D and freestanding image। ये एक 3D और फ्री स्टैंडिंग इमेज होती है। इट डज़ नॉट रिक्वायर स्पेशल ग्लासेस टू व्यू। इसके लिए कोई स्पेशल ग्लासेस नहीं चाहिए होते, ऐसे ही नज़र आ जाती है। अ 3D होलोग्राम डिस्प्लेस प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमेशन 3 डायमेंशनली इनेबलिंग सीमिंगली रियल ऑब्जेक्ट्स। एक 3D होलोग्राम प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट्स और एनिमेशन को 3 डायमेंशनली डिस्प्ले करती है जो बिल्कुल रियल ऑब्जेक्ट्स की तरह नज़र आते हैं। देन वी हैव आर ई क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वे रोबोटिक्स इज़ यूज़फुल फॉर ह्यूमंस। कि रोबोटिक्स किस तरह यूज़फुल है ह्यूमंस के लिए, हमें ये एक्सप्लेन करना है। सो आवर आंसर इज़ robotics is useful for humans in various fields of life। robotics humans के various fields of life में useful हैं। they can do such complicated tasks like diving deep into the ocean to gather data about oil spills or helping in disaster struck areas। वो complicated task कर सकते हैं, मुश्किल task कर सकते हैं, जैसे कि ocean के अंदर dive करना और ताकि data निकाल सके oil spill का, और disaster struck areas में help करना। Thanks for watching. If you had not subscribed to my channel, please subscribe it and like the video.